अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी। वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। ओके। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और पहले हम तीन लॉज थर्मोडायनामिक्स के पढ़ चुके हैं, ज़ीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। और फिर हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ को कंबाइन करके भी मुख्तलिफ़ किस्म की रिलेशंस डिराइव कर दिए थे, जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को मुख्तलिफ़ कंडीशन में एक्सप्लेन करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दिस टॉक अबाउट द सिस्टम एट इंटरनल इक्विलिब्रियम when its temperature approaches ज़ीरो। तो यहाँ पे हम दो बातें जो है वो करते हैं, एक इंटरनल इक्विलिब्रियम की और एक व्हेन द टेम्परेचर गोज टू ज़ीरो। सो ज़ाहिर है जब थर्मोडायनामिक में हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Okay, so when we say when the temperature approaches zero, so it means when the temperature reaches absolute zero. So this third law of thermodynamics that actually describe the behavior of the system when its temperature approaches the absolute zero. So when we are in the vicinity of the absolute zero, so normally all the processes cease out in a system, and we call the system to be in the internal equilibrium. So a system in internal equilibrium mean when there is no process going on within the system, or such a system is also known as an inert system when there is no process going on in the system. So historically, the third law of thermodynamics was an attempt to find a property of the system that determines the direction in which a chemical reaction takes place. So you you know that in the second law of thermodynamics, we were talking about the direction in which um, system spontaneously approaches an equilibrium state. And here, when we talk about the internal equilibrium, so it means that there is no external work going on the system, or there is no heat supplied to the system or uh, to the surrounding. So what we are left is the chemical reaction within the system. So जिस तरह से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में यही बात हो रही थी कि सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ जो है अप्रोच करेगा तो कौन सा रूट फॉलो करेगा। तो इसी तरह ये भी उसी के एक किस्म की एक यू कैन से कि एक कॉपी थी कि अगर सिस्टम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो प्रोसीड करता है तो वो कौन सी चीज़ होगी जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिटरमिन करेगा। ओके, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो है वो प्रपोज किया गया था। तो जिस तरह से शुरू में हमने कहा कि इट इज़ एक्चुअली द एब्सोल्यूट ज़ीरो, जहाँ पे सारे प्रोसेसेस जो है वो सीज आउट हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब हम इस नतीजे पे कैसे पहुँचे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे हम एक सिंपल सिस्टम जो है वो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है। ओके, और ये एक टेम्परेचर रिजर्वायर जो कि टेम्परेचर टी पे है उसके साथ जो है वो थर्मल कांटेक्ट में है। ओके, अब इफ यू कीप
the pressure constant, mean no external work. So here P is equal to constant. So you are not doing any external work, and you are just observing the internal processes. Okay. So if there is a chemical reaction take place within the system, okay, so there is a possibility of transfer of heat from the system to the surrounding. Okay, so normally you know that we have exothermic chemical reaction, and as a result of the exothermic chemical reaction, the heat is delivered to the surrounding. So, so the amount of this heat which is delivered to the heat reservoir at constant pressure is actually known as, or the change in enthalpy of the system. So, for example, if Hi is the initial enthalpy and Hf is the final enthalpy of the system after the chemical reaction, and if Q is the amount of heat delivered to the system, then we know that this delta Hf minus Hi is equal to Q. And we put it here minus Q because this heat is delivered to the temperature reservoir. Or we can say that delta H is equal to minus Q. So let's suppose this is our equation number 1. Okay, so enthalpy actually express um, the possibility of chemical reaction. If delta H is 0, so it means there is no chemical reaction taking place within the system. And if delta H is non-zero, it means there is some chemical reaction within the system. अच्छा, एक बात आप ध्यान में रखिए कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होता तो कभी भी केमिकल रिएक्शन ना होता। फॉर एग्जांपल, अगर हम सिंपल केमिकल रिएक्शन की बात करें कि जब एक हाइड्रोजन एटम जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ मिल के आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना के देता है। तो अगर हाइड्रोजन अपने एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता तो कभी भी ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना बनाता। तो अगर ये अपनी एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होता तो ये कभी भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ना बनाता। लेकिन हकीकत में यह है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम जो है वो अपनी एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं है, और ये तभी स्टेबल हो जाता है जब ये किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है बनाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तभी जाके ये स्टेबल हो जाता है। या यू कैन से कि ये अब इक्विलिब्रियम में है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो अपने एटॉमिक स्टेट में इक्विलिब्रियम में नहीं है, जबकि वो मॉलिक्यूलर स्टेट में इक्विलिब्रियम में है। तो ये बात आप लोगों के जहन में होनी चाहिए कि अगर कोई सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है तो वो कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। केमिकल रिएक्शन वो इसलिए करता है ताकि अपने आप को स्टेबलाइज करे या इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो अचीव कर ले। आपको पता है कि हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल में वो नोबल गैसेस है, या उसको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, क्योंकि वो अपनी एटॉमिक स्टेट में स्टेबल है। लिहाजा उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन करे और किसी दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल बनाए। तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। इसके नोबल और इनर्ट गैसेस के अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट है वो अपने एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं है, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। और यही चीज़ जो है वो रेडियो एक्टिविटी के साथ भी है कि जो एलिमेंट जो है वो अपने एटॉमिक स्टेट में
स्टेबल नहीं है, तो वो फिर रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं ताकि स्टेबिलिटी गेन करें। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, दिस इज एक्चुअली proceeding toward the stability or equilibrium state. सो इसका ये मतलब हुआ कि ये अगर हीट क्यू जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में आ रहा है या ये टेम्परेचर रिजर्वायर में आ रहा है, तो इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन हो रहा है और सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ प्रोसीड कर रहा है। और जब मजीद हीट जो है वो इस रिजर्वायर की तरफ जो है वो आना बंद कर देगा। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन दिस क्यू विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि अब मजीद कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है और इसका ये मतलब होगा कि हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो और एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो एच इज इक्वल टू ज़ीरो है या एच इज इक्वल डेल्टा एच इज इक्वल टू ज़ीरो है या एच इज इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका मतलब है देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। ओके, सो दिस ओके, सो ये इससे हमें पता चल जाता है कि सिस्टम हमारे साथ जो है वो इंटरनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, या वो सिस्टम जो है वो इनर्ट है कि नहीं है। लेकिन ये उस ज़माने की बात है जब साइंटिस्ट को सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का पता था। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन से चूंकि हीट जो है वो हीट जो है उससे इमिट होता है। ओके, तो अगर सिस्टम से हीट क्यू जो है वो आ रहा है टूवर्ड द टेम्परेचर रिजर्वायर, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। अब ये भी पॉसिबल इसकी अगर सिस्टम से हीट का निकलना जो है वो हमें ये शो करता है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, तो जाहिर है जब सिस्टम की तरफ हीट जाएगा, अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो हीट क्यू है वो सराउंडिंग से या इस टेम्परेचर रिजर्वायर से सिस्टम की तरफ जा रहा है, तो जाहिर है इसका फिर ये मतलब होगा कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम से डिपार्ट कर रहा है, कि वो किसी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जा रहा है। लेकिन ये बात जो है वो 100% सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होते हैं। और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी इसलिए होता है कि वहाँ पे सिस्टम जो है वो स्टेबल नहीं है, और अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेगा कि केमिकल रिएक्शन करेगा, और उस केमिकल रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वो हीट यहाँ से वो जो टेम्परेचर रिजर्वायर है वहाँ से हीट आएगा। तो अब तो वो जो पहली वाली हमारी स्टेटमेंट थी कि अगर सिस्टम जो है वो हीट डिलीवर करता है टू द रिजर्वायर, तो इसका मतलब है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। और अगर सिस्टम जो है वो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले रहा है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जा रहा है। लेकिन जब यहाँ पे हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, और अगर एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो भी इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है। सो दिस सिस्टम इज अप्रोचिंग टूवर्ड इक्विलिब्रियम। लेकिन प्रोसेस जो है यहाँ पे उलट हो रहा है कि यहाँ से ये हीट जो है वो गेन कर रहा है। तो अगर हीट का सिस्टम से एग्जिट करना इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की निशानी थी, तो अब हीट का सिस्टम को गेन करना भी इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की निशानी है। तो इसका मतलब है कि हम सिंपल जो इक्विलिब सिंपल टेम्परेचर का सिस्टम की तरफ जाना
या सारी हीट का सिस्टम की तरफ जाना या हीट का सिस्टम से बाहर जाना जो है, ये हमें इक्विलिब्रियम जो है वो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। इसलिए हमें किसी दूसरे पैरामीटर की तरफ जो है वो जाना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हीट, और ये हमारे पास एक दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था थॉमसन और दूसरे का नाम था बर्टलेट। ओके, तो ये अब हीट का सिस्टम की तरफ जाना या हीट का सिस्टम से बाहर जाना, ये इसको हम हर वक्त यूज नहीं कर सकते, ताकि हम ये समझे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, या सिस्टम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, या इसके लिए वो कौन सा रूट जो है वो फॉलो करेगा। अगर ये उसी तरह से वो होता कि जिस तरह से हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कहा कि जो भी सिस्टम जो है वो स्पॉन्टेनियसली इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, तो एंट्रोपी जो है वो बढ़ जानी चाहिए। तो इसी तरह से इनिशियली साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि हम इंथैल्पी को इसी तरह से केमिकल रिएक्शन के साथ जो है एसोसिएट कर सकते हैं कि अगर सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, तो इंथैल्पी या इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मसला आ गया। वो मसला ये है कि अगर एक जो थर्मिक रिएक्शन है, तो इंथैल्पी तो डिक्रीज होगी, लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होगी। तो फिर यह है कि हम इंथैल्पी को उस तरह से, जिस तरह से हमने एंट्रोपी को इक्विलिब्रियम के साथ अटैच किया हुआ है, तो उसी तरह से हम इंथैल्पी को केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ अटैच नहीं कर सकते। लिहाजा हमें किसी दूसरी पैरामीटर के बारे में सोचना चाहिए। और आखिर में आप देखेंगे कि वो जो पैरामीटर है हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो है। तो हमें जो कि ये पता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कि सिस्टम जो है जब इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा होता है, तो उसका इंट्रोपी जो है वो बढ़ रहा होता है, और सिस्टम जो है वहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करता है या इक्विलिब्रियम में आता है, और स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम में हमारे पास एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। और आपको पता है कि सिस्टम की जो एनर्जी है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम, या कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। एंड द गिब्स फ्री एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, एंड दैट इज इक्वल टू यू माइनस पी एस प्लस पी वी। ओके, सो अब जाहिर है कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है अगर जी मिनिमम है। जी इज मिनिमम, so this implies the system is in equilibrium. अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, तो इस इक्वेशन में जी
तभी मिनिमम होता है जब आपके पास जो एस है ये मैक्सिमम होता है। एस को अगर, क्योंकि टी और पी ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो एस अगर इंक्रीज कर रहा है तो जी जो है वो डिक्रीज करेगा। और ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारे पास सिस्टम जब इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा होता है तो इंट्रॉपी जो है वो बढ़ जानी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा से दोहरा दूँ, जब आप इंट्रॉपी की बात करते हैं तो या तो हम सिस्टम की इंट्रॉपी की बात करते हैं जब आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही हो। ओके, यहाँ पे सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि वो सराउंडिंग के साथ या अपनी टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ जो है वो थर्मल कांटेक्ट में है। तो हियर द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड। तो अगर ये आइसोलेटेड नहीं है तो उस वक्त पे जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें सराउंडिंग और सिस्टम दोनों आ रहे हैं। तो जब हम ये बात करते हैं कि जी इज मिनिमम, तो इसका मतलब है जी इज मिनिमम फॉर द सिस्टम। और जब हम ये बात करते हैं कि एस इज मैक्सिमम, ओके, तो एस इज मैक्सिमम का मतलब है दिस इज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। तो जाहिर है जब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स बढ़ेगा, ओके, तो सिस्टम जो है वो अपने इक्विलिब्रियम की तरफ जो है प्रोसीड करेगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब है मिनिमम एनर्जी स्टेट, तो वहाँ पे जी जो है वो मिनिमम होगा। तो जाहिर है अब जब सिस्टम जो है वो लो टेम्परेचर की तरफ जा रहा होता है, ओके, तो या जो गैस फ्री एनर्जी में अगर चेंज आ रहा है, वो चेंज क्या है कि इट प्रोसीड टूवर्ड मिनिमम वैल्यू। तो जो चेंज इन गैस फ्री एनर्जी है, इसको हम एसोसिएट कर सकते हैं विद द इंथैल्पी। क्योंकि यहाँ पे जब हमने प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है और टेम्परेचर और हमने सिस्टम को जो है वो रिजर्वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कि कोई बाहर से हम इंटरनली, बाहर से हम कोई फोर्सफुली हीट इसको दे नहीं रहे, बल्कि सिस्टम जो है वो हमेशा ये जो रिजर्वायर है उसके साथ इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब अगर सिस्टम का टेम्परेचर कम होता है तो रिजर्वायर से थोड़ा सा हीट जाता है ताकि उसको दोबारा से इक्विलिब्रियम में लेके आए। या सिस्टम का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो वो रिजर्वायर जो है वो सिस्टम से हीट गेन करता है ताकि सिस्टम का जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। बाकी ये आम कंडीशन में ये इसको हीट देता नहीं है, ना उससे हीट लेता है, जस्ट उसकी इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए ये किया गया है। तो जाहिर है फिर जो सिस्टम में हीट का बढ़ना या सिस्टम में हीट का कम होना जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है। और जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, सो देयर इज अ चेंज इन enthalpy of the system. So what we need to do, that we have to connect the change in Gibbs free energy uh, with the change in enthalpy. So change in Gibbs free energy, that is delta G, और change in enthalpy is delta H। और इसके लिए हमने रिलेशन पिछले लेक्चर में लिखा था, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अगर आपको याद है तकरीबन आखिरी इक्वेशन था पिछले लेक्चर का, तो वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ जी और एच था, यहाँ पे हम डेल्टा एच और डेल्टा एच, क्योंकि हम चेंज यूज़ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हम डेल्टा जी। वहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन था वो डेल्टा डेल्टा के बगैर था, और यहाँ पे हम इसको डेल्टा के साथ लिख रहे हैं। सो पार्शल बाय पार्शल पी डेल्टा जी एट कांस्टेंट
P. So let's suppose this is equation number 2, and this is known as the Gibbs-Helmholtz equation. और ये हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये था कि वहाँ पे डेल्टा नहीं था, तो ये वाला डेल्टा भी नहीं था, ये वाला डेल्टा भी नहीं था, और ये वाला डेल्टा भी नहीं था। यहाँ पे हम चूंकि चेंज की बात कर रहे हैं, तो वी आर पुटिंग अ डेल्टा टू show that there are changes in the gas free energy associated with the changes in enthalpy. अच्छा, अब हम गैस फ्री एनर्जी को एसोसिएट करते हैं, चेंज इन गैस फ्री एनर्जी को एसोसिएट करते हैं विद द चेंज इन एंथैल्पी। और ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है दैट इज एसोसिएटेड विद द केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड है डेल्टा एच के साथ। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को देख ले, तो डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है वो तभी इक्वल होंगे जब ये पार्ट जो है वो ज़ीरो है, और ये पार्ट तभी ज़ीरो है जब टी ज़ीरो है। तो अगर टी ज़ीरो हो जाता है तो इक्वेशन नंबर 2 में फिर डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है वो आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो दिस डेल्टा जी ओके इज इक्वल टू डेल्टा एच एस टी टेंस टू ज़ीरो। ये बात आप कर सकते, या आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ टी पार्शियल बाय पार्शियल टी डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब टी ज़ीरो जा रहा है। ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, एक टी है और एक ये है। तो या तो ये ज़ीरो होना चाहिए और या ये ज़ीरो होना चाहिए। तो टी तो ये वाला तो ज़ीरो नहीं है। ओके, ये तो चेंज है। ओके, अगर आप ये ज़ीरो कर ले तो इसका मतलब है कि कोई भी चेंज आ नहीं रहा। सो दिस इज द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो दिस इज नॉट ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि फिर ये ज़ीरो हो सकता है। तो इसको फिर हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट टी ए डेल्टा टी एस टी टेंस टू ज़ीरो। तो अगर टी लिमिट ज़ीरो हम पुट कर ले तो ये चीज़ जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 फिर डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है वो इक्वल हो जाएंगे। जनरली आपको पता है कि हमारे पास जो जी है दैट इज इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पी वी। अगर हम डी जी मालूम करें सो दैट इज डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। या अगर हम सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स का यूज़ करें, सो फर्स्ट लॉ, सो दैट इज टी डी एस माइनस टी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस जी टी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये टी डी एस इस टी डी एस के साथ, ये पी डी वी इस पी डी वी के साथ कैंसिल करो। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। ओके, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर की। ओके, सो जैसे जैसे अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो एट पी इज इक्वल टू कांस्टेंट डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी, और दिस implies that partial g by partial t at constant p is equal to minus s।
व्हाट डज इट मीन कि अगर आप मिनिमम जी की तरफ जा रहे हैं तो एंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये माइनस की तरफ जा रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस माइनस एस अगर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा जी बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह विद टेम्परेचर, तो अगर आप इसकी प्लॉटिंग करें तो इस बिहेव लाइक दिस कि अगर ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास डेल्टा जी है, ओके। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास डेल्टा जी की कोई वैल्यू है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो डेल्टा जी जो है वो डिक्रीज होने लगता है। This is the variation of delta G from this equation, you know। इसी तरह हम डेल्टा H के लिए भी वो कर सकते हैं, और डेल्टा यू नो दैट हमारे पास जो H है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, एंड डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, and this is equal to TDS minus PDV plus PDV plus VDP। तो ये PDV इस PDV के साथ आप कैंसिल करेंगे, सो ये है TDS प्लस VDP। और अगर आप P कांस्टेंट कंसिडर करें, सो DP इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस इज TDS। तो इसका मतलब है कि पार्शियल एच बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू एस, ओके। तो व्हाट डज इट मीन कि ना, इसको ऐसे नहीं करता। इसको पार्शियल एच बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू टी इनटू पार्शियल एस बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी। तो इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये डेल्टा एच की कोई वैल्यू है, तो यहाँ से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डेल्टा एच जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो डेल्टा एच इज इंक्रीजिंग, इसी यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास पॉजिटिव साइन है। तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेल्टा एच जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डेल्टा जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यू सी दैट कि जैसे जैसे अब हम अगर कहते हैं कि लो टेम्परेचर की तरफ अगर हम आना चाहे, तो डेल्टा जी मतलब इंक्रीज कर रहा है और डेल्टा एच जो है वो डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके जब आप एब्सोल्यूट जीरो पे आ जाते हैं तो डेल्टा एच और डेल्टा जी इक्वल हो जाते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया हुआ है। यू सी हियर कि जैसे आप एब्सोल्यूट जीरो पे पहुँच जाते हैं तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच व्हेन यू अप्रोचेस डेल्टा टी। सो इस ग्राफ से भी आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि व्हेन यू आर हियर, ओके, एट एनी टेम्परेचर टी, और जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होता है, तो ये डेल्टा एच जो है वो जा रहा होता है यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है डेल्टा जी और एब्सोल्यूट जीरो पर। और इसी तरह अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो डेल्टा एच भी जो है वो कम होता जाता है। और ये एक ऐसा पॉइंट है एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो कि जहाँ पे आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। सो
1906 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नर्स्ट। ओके, तो इस सिचुएशन को देख के ही प्रपोज so in 19 in 1906 Nurse proposed a general principle that as the temperature approaches zero, as the temperature approaches zero, not only delta G and delta H approaches equality, ये चीज़ तो हमने देख लिया ना, वो उधर इक्वेशन से भी हमने देख लिया, इधर ग्राफ प्लॉट करके भी हमने देख लिया कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट जीरो तक अप्रोच करता है तो डेल्टा जी और डेल्टा एच जो है वो इक्वलिटी की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसने जो है वो नर्स ने इसके अंदर एक और बात भी नोट की, और वो ये कि ये डेल्टा जी और डेल्टा एच से अप्रोच टू इक्वलिटी नहीं होता है, बट the rate of change of delta G and delta H with respect to temperature both approaches zero। क्या मतलब कि डेल्टा जी और डेल्टा एच इक्वल भी है, लेकिन ये ज़ीरो है, ज़ाहिर है जब भी दोनों ज़ीरो है तो दोनों इक्वल भी है, तो वो ना सिर्फ इक्वलिटी को अप्रोच करते हैं बल्कि ये ज़ीरो को भी अप्रोच। तो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला लाइन आपके पास ज़ीरो लाइन है, ओके, ये अगर आपके पास ज़ीरो लाइन है तो ज़ाहिर है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है और डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो दोनों जो है वो ज़ीरो की तरफ अप्रोच करते हैं व्हेन दे आर चेंजिंग विथ टेम्परेचर। तो हम ऐसे मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं कि लिमिट पार्शियल बाय पार्शियल t of delta G at constant P is equal to 0 as T approaches to 0. So this is equation number 3, and limit partial by partial T delta H at constant P as T approaches 0 is equal to 0. So this is equation number 4. तो यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं। एक ये कि जब टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा होता है तो डेल्टा जी में जो चेंज है वो ना सिर्फ डेल्टा जी में जाके खुद ज़ीरो हो जाता है, बल्कि उसमें जो फर्दर चेंज है वो भी ज़ीरो, मतलब वो असल में डेल्टा जी ज़ीरो ही हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि व्हेन डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि देयर इज नो फिजिकल प्रोसेस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, नो फिजिकल प्रोसेस एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। मीन एब्सोल्यूट ज़ीरो पे जब डेल्टा जी ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कि हम या सिस्टम को हीट दे रहे होते हैं या हम वर्क कर रहे होते हैं या सिस्टम हमारे लिए वर्क कर रहा होता है या सिस्टम हमें, तो वो फिजिकल प्रोसेस है। इसी तरह अगर
एब्सोल्यूट जीरो पे डेल्टा एच जीरो है, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है नो केमिकल प्रोसेस एट एब्सोल्यूट जीरो। या आप ऐसे कह सकते हैं कि द सिस्टम इज एन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एट एब्सोल्यूट जीरो व्हेन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। ओके, कोई प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब है कि सिस्टम इज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो व्हाट डज इट मीन कि एब्सोल्यूट जीरो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है टेम्परेचर का कि जिस पे सिस्टम के अंदर सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो है वो सीज्ड आउट हो जाते हैं। ओके, सो इसके साथ साथ नर्स ने इसकी एक स्टेटमेंट की है, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ द एंट्रोपी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप देख लें, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, इसको फर्ज करें मैं वो इक्वेशन नंबर टू है, तो लेट सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर थ्री कह देता हूँ। और ये वाले खैर है, हम इसको इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर फोर हो गया, और ये इक्वेशन नंबर फाइव हो गया। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री को अगर आप देखें, तो वहाँ पे पार्शियल जी बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ, इक्वेशन नंबर थ्री implies दैट पार्शियल बाय पार्शियल टी, तो मैं इसको डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। ओके, क्योंकि वो पहले वाले में उसमें क्या है, वहाँ पे डेल्टा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने उसमें ये डेल्टा नहीं है, उसमें इक्वेशन नंबर थ्री में ये डेल्टा नहीं है, मैंने यहाँ पे इस पे ये डेटा डेल्टा डाल दिया है। सो आई कैन राइट पार्शियल बाय पार्शियल टी डेल्टा जी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। अगर मैं लिमिट पुट करूँ, लिमिट t टेंस टू जीरो, पार्शियल बाय पार्शियल टी डेल्टा जी at constant p is equal to minus limit t tends to 0 and to delta s. Let's suppose this is equation number 6. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 5 को देख लें, और इक्वेशन नंबर 5 ने इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन नंबर 6 का जीरो आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 6 का जीरो है, तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड भी इक्वेशन नंबर 6 का जीरो है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सा, इक्वेशन नंबर 4, या यू कैन से कि using equation 4 in equation number 6, you write limit delta s as t tends to 0 is equal to 0. This is equation number 7, and this is known as the Nernst theorem. या इसको आप नर्स स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बी कह सकते हैं।
कि when you reaches the absolute zero, so the change in entropy is equal to zero. Yeah, you can say कि uh, uh, in the neighborhood, जो असल स्टेटमेंट थी नर्स थ्योरम की वो ये है कि इन द neighborhood of absolute zero, all reaction in internal equilibrium takes place with no change in entropy। का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस अगर हो भी रहा है तो वहाँ पे कोई एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा, या यू कैन से कि कोई भी प्रोसेस अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो पे या इन द नेबरहुड एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हो रहा हो तो वहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी में कोई फ़र्क नहीं है। मतलब एंट्रोपी जो है या यू कैन से कि वो चेंज इतना मिनिमम है कि उसको हम ज़ीरो कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ नर्स। फिर इसी स्टेटमेंट को 1911 में इन 1911 प्लांक्स ने इसको रीस्टेट कर दिया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो प्लांक ने ये कहा कि तो प्लांक ने ये कहा कि एब्सोल्यूट जीरो पे डेल्टा एस भी जीरो होता है, लेकिन जो एंट्रोपी है वो बजाते खुद भी जीरो है। डेट इज कि लिमिट t tends to 0, s is equal to 0। Okay, so this is, let's suppose, equation number 8, and this is known as the Planck theorem। नर्स ये कहता है कि इन द नेबरहुड ऑफ एब्सोल्यूट जीरो डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, और प्लांक ये कहता है कि इन द नेबरहुड ऑफ द एब्सोल्यूट जीरो एस इटसेल्फ इज इक्वल टू जीरो। सो ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, दिस इज समटाइम नोन एज द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, लेकिन अब हमारे साथ सवाल ये पैदा होता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे हम पहुंचेंगे कैसे। ओके, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ टू रीच एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। चलो, ये तो हमने थियोरेटिकली ये सारी चीज़ें कर दी है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे
डेल्टा जी भी ज़ीरो है, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे डेल्टा एच भी ज़ीरो है। वहाँ से हमने ये देखा कि डेल्टा एस भी ज़ीरो है, और फिर हमने ये देखा कि एस भी ज़ीरो है। तो ये अगर इन चीज़ों को हम समराइज करें, सो एट एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, या एस टी टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा जी टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा एच टेंस टू ज़ीरो, डेल्टा एस टेंस टू ज़ीरो, एंड एस itself टेंस टू ज़ीरो। ये हमारे पास जो है अब तक जो हमने जितना डिस्कस किया, तो उसका रिजल्ट ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो को अप्रोच करता है, तो डेल्टा एच भी डेल्टा जी भी ज़ीरो को अप्रोच करता है, डेल्टा एच भी ज़ीरो को अप्रोच करता है, डेल्टा एस भी ज़ीरो को अप्रोच करता है, और एस भी ज़ीरो को अप्रोच करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन रीच एट द एब्सोल्यूट ज़ीरो। सो इसके लिए जो एक हमारे पास एफिशिएंट टेक्निक है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। कि हम इसको एडियाबैटिक प्रोसेस में इसको टेम्परेचर इसका जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो हाउ यू कैन रिड्यूस इट टेम्परेचर, कि आपके पास एक सिस्टम है। ओके, और इसको आप एक टेम्परेचर रिजर्वायर पे रख के, अगर ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, तो अगर T1 ग्रेटर है T2 से, सो देर विल बी हीट फ्लोइंग फ्रॉम T1 टू T2। तो इसका टेम्परेचर जो है वो T2 के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको एक और रिजर्वायर पे रख के, कि जिसका टेम्परेचर पर T3 है। ओके, तो इस केस में इसका टेम्परेचर T2 है, और T2 जब ग्रेटर होगा T3 से, तो देर विल बी फ्लो ऑफ हीट। ओके, तो अगेन टेम्परेचर जो इसका रिड्यूस हो जाएगा T3। इस तरह ये प्रोसेस आप करते जाए करते जाए करते जाए, तो टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो ये एक कंटिन्यूअस एक चेन एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम कर लेते हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एक ऐसे मिनिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाए जिससे नीचे जाना जो है वो मुमकिन ना हो। तो अब इसके लिए यू नो दैट कि हमारे पास जो चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एस, दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाय टी। ओके, व्हेन you go from some temperature T1 to T2। अब हम टेम्परेचर रिड्यूस करते जाते हैं, और लेट्स सपोज या अब ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम एब्सोल्यूट जीरो से टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी जो है आपके पास कितना होगा। ओके, सो लेट्स सपोज दिस इज टेम्परेचर एंट्रोपी एट टेम्परेचर T minus entropy at temperature 0. So this is a situation when you go from 0 temperature to any temperature T, dq by T। ओके, सो ये आपके पास ये जो रिलेशन है डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल T1 टू T2 डिकवरी, ये तो आपके पास जनरल रिलेशन है चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस।
अब हम ये करते हैं कि लेट सपोज अगर हमारे पास T1 जो है वो 0 के है और T2 अगर हमारे पास एनी टेम्परेचर T है, तो उस केस में हमारे पास सिचुएशन क्या है? सो दिस इज S at temperature T, S at temperature 0 is equal to this। और हमें ये पता है कि एंट्रोपी एट एब्सोल्यूट 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ कि entropy at any temperature T is equal to 0 to T dq by T। सो ये हमें एक रिलेशन दे रहा है फॉर द एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर T। सर जी सर बस आज के लिए इतना काफी है, और समझ नहीं आ रही इससे आगे। यस सर। सर आज के लिए इतना काफी है सर। रोजा है सर, नहीं आखिरी अशरा है। एक तो सर अब हम बिल्कुल 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 ख़त्म करने की करीब पहुंच गए। यू कैन से कि हम 90% जो है वो कर चुके हैं। तो 90% टॉपिक ख़त्म करने के बाद अगर हम 10% छोड़ देंगे तो ये बड़ा अजीब लगेगा। हाँ, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा वो आप मुझे बता दें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। असल के دخلك اعتكاف تكينين ويتغلى لك تعرف एहतिकाफ तो नन की नहीं او جيوسو यस كيني सर। सर नन की नहीं दिखा तो। देखो हमें समझ नहीं आ रहा तो दाखुद बाड़ा बल सर मुख्तलिफ खबर यस है। सर। ناسل के मैसेजेस के सर لقى فرزيات كسان كيني وتا كور كم خلق كيني हम्म। نويل تي ओके, سرطوة तो चलो फिर ये जो आखिर में मैंने कुछ कहा इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, اوكي سر बस आप यहाँ तक आप इसको समझे कि यहाँ तक इसको भी मैं रिमूव करता हूँ। तो दिस इज जस्ट अ समरी। ओके, कि अगर टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा जी भी ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा एच भी ज़ीरो को, और डेल्टा एस भी, और एस बजाते खुद भी। तो दिस इज द होल समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो अभी बता दें। हम्म। मैं ऊपर भी जाता हूँ, जहाँ पे आपको कहीं भी कोई मसला आ रहा है तो मुझे बता दें कि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ। और सर سبب क्लास ली या नेक्स्ट वीक ځکه چې اکثر کسان بکوینی تکاف ته نو دی ویل چې دا سر چې دې اعتکاف ته لاړل، اعتکاف ته سر لاړل، د خو موږ باقی کله سنو به سر د عید نه بد مطلب کې بد والو کنه عید نه پس ته یو دا کورس مطلب کې کور کو کنه و سر د نو باقی کله سنو کا د عید نه پس والو داسې تاسو تاسو ماته پرون ویلې وای نه موږ به چېرته یا پرون نیم شانته کلاس اخیستی، نن به یې نن اخیستلی، نو کم از کم دا یو ټاپک خو به مو کور کړو. بلکې زموږ سر سره زمونږ اخوا بل یو دوه سر ټاپک پاتې شول، نو ترموډاینامیک پورشن چې دا کمپلیټ ختمیږي. سر مونږ لکه دومره موږ ډېر ټاپکس وکړل سر نن او سبا مونږ کلاس او سر اخیستلی وی، نو ترموډاینامیک کم پورشن به کمپلیټ ختم شي. سر خبره هم ټیک ده، خو سر مونږ دومره زیات ټاپکس وکړل کنه، نو سر عام کور کول غواړي کنه. نو که سر د باقی کلسونه دغه که مطلب اختر نه یاره پس ته یار والو دا ایره سي سټوډنټان به دا چې دي غونډ کنه دا به د خدای پاک جنت ته هم بوتلل کنه، دی به هلته هم نه خوشحاله. چې کله بس ورته سر څوک لږ ټاپک کوي پلاني ټیچر هغه موږ ته اډو کورس نه کمپلیټ کړی، چې ورته کار کوي وي او دومره ډېر کار راته کړی دا به کور کو څنګه. نه نه سر مونږ داسې نه وایو سر، بس سر مونږ دغه دا زه چې مونږ تاسو ستا خبره نه کوم، دا جنرال سټوډنټانو دا خبره کوم چې زما څومره چې ستا عمر دی دومره زما د ټیچینګ ایکسپیرینس دی. د 99 نه پس زه لګیا یم د سټوډنټانو سره په هغه کې مطلب 22 سال زما وشول. په دې 22 سال کې بالکل چې دی سر همدغه خبره ده چې ورته لږ کار وکړي ټیچر وایي مړه وایي موږ ته خو کورس نه کور کړی که نه، او چې ورته او سر کورس کور کړي وایي دومره ډېر کار و موږ پې پوه شوي نه یو.
No, sir, हाँ, bisa rosta ke. बिल्कुल सर खो सर دا कोर्स सर مونږ خو مطلب کې ټاپکس ډېر هغه کړل کنه کور کړل نو سر کدا ټاپکس باقاعده مطلب کې پریکټیس کول غواړي کنه نو سر دا باقي کلاسونه ک اختر نه پاس والو ان بعد بیا دا د دې به موږ ته دا ټاپکس فائدہ شو او مطلب تاسو ما کور سره شي لږ کنه مخکې رابطه کړې نه موږ په د پرون کلاس اغسته او بل په مو کلاس اغستلو نو کم از کم دا ترموډینامیک پورشن مو ختم کړو دا به زموږ د میډ ټرم کورس په کمپلیټ شو نو تاسو په کلیک ډکړو عید نه پس موږ یو میډ ټرم ایگزام اغستلو او هغه نه پس مو بیا ډایرکټ چې دا سټیټسټیکل کورس شروع کړو دا اوس یو لانجه جوړه شو چې اوس به دا پورا 10 ورځې به کلاسونه نه بیا به سلو 15 ورځې اختر کې نو کم از کم 15 17-18 ورځې چې دی بس هغه لاړې خرابې شولې صحیح सर دا خبره هم ٹھیک ده सर आपकी बात ठीक है, आप कल क्लास ले ले। जो लोग इत्तिकाफ पे बैठ रहे हैं ना, तो वो बाद में उनको वीडियो सेंड कर देंगे, वो देख लेंगे। सही है ये आप लोग तो वैसे भी वो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं ना तो कल फिर इस तरह है कि हम क्लास थोड़ा सा लंबा लेंगे या आप मुझे इस तरह का कोई टाइम दे कि सुबह के वक्त का अगर आप मुझे कोई 10 बजे का टाइम दे और 10-15 या 10-15 तो नहीं लेकिन शायद 10-25-30 तक मैं ये वाला ख़त्म कर दूं ठीक है फिर आप आराम से जो है वो थोड़ा सा वो करे रेस्ट कर ले और फिर मैं 2 बजे क्लास शुरू करूँ जो नॉर्मल हमारी टाइमिंग होती है 2 से 3:30 तक जो है वो मैं वो सिंपल है जस्ट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो आपको पहले से पता ही है तो आप लोगों ने एफईसी में भी पढ़ा होगा और शायद आपने अपने बीएस में भी कहीं केमिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा हो तो वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की उसके जस्ट पॉस्टुलेट है 4-5 वो